Hello and welcome. In my last video, I talked about primary structure of protein. Basically, it's a long single polypeptide chain made with only peptide bonds. That's it. And you learned about N-terminal, C-terminal. Now I will talk about secondary structure of protein. मेरा मतलब पिछले वाले वीडियो में मैंने बात किया था प्राइमरी स्ट्रक्चर प्रोटीन के बारे में, जो सिर्फ एक अकेला बहुत लंबा पॉलीपेप्टाइड चेन से बना हुआ है, जिसमें सिर्फ आपको पेप्टाइड बॉन्ड देखने को मिलेगा बस, जहां पर आपको एन टर्मिनल और सी टर्मिनल के बारे में आप सीख चुके हो। आज हम बात करेंगे सेकेंडरी स्ट्रक्चर के बारे में। सेकेंडरी स्ट्रक्चर मींस the existence of non-peptide bonds along with peptide bonds. Non-peptide bond means there may be ionic bonds, covalent bonds, hydrogen bonds, van der Waals force, hydrophobic interactions, etc. etc. मतलब सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या है? पेप्टाइड बॉन्ड के साथ साथ नॉन पेप्टाइड बॉन्ड्स भी रहते। नॉन पेप्टाइड बंधन मतलब जहां पर आपका हाइड्रोजन बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, वैन डर वाल्स फोर्स, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस, तरह तरह के अगला वगैरह बॉन्ड्स देखने को मिलेंगे। ठीक है। नाउ द सेकेंडरी स्ट्रक्चर एज यू कैन सी इन दिस चार्ट इज बेसिकली 6 टाइप्स। फर्स्ट ऑफ ऑल अल्फा हेलिक्स, बीटा प्लेटेड शीथ, बीटा बैंड्स, बीटा टर्न्स, बीटा लूप्स एंड सुपर सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स। ठीक है। अमंग दोस बीटा प्लेटेड शीथ हैज 2 subtype, parallel, anti-parallel. Okay. Alpha helix also have subtypes, clockwise, anti-clockwise. Okay. Anyway, I will talk about all the types in details, but you have to understand about my handwritings. My handwritings is the worst. I will write in my tab, I will record it, and you have to see in the video. Okay, get ready. My handwritings is the worst, but try to understand. As I said, secondary structure of protein. These are 6 types. First of all, alpha helix, beta plated sheath, beta bands, beta turns, beta loops, and super secondary structures. Okay. First of all, you have to understand alpha helix. See, alpha helix, a single polypeptide chain forms a helical pattern or coil shape or spring-like structure. मतलब एक अकेला polypeptide chain है जो जलेबी जैसा पेचीला या फिर स्प्रिंग जैसा गोल गोल रूप धारण करता है। ठीक है। As you can see in this photo, the alpha helix. Now see, the formation of this helical pattern may be clockwise or anti-clockwise. Okay, clockwise or anti-clockwise, and you need to understand, as I said, each complete turn has 3.6 amino acid. I mean, this single turn has 3.6 amino acid. This is first, second, third, and fourth. The distance between 2 amino acid is 1.5 nanometer. And the distance between each coil or helical pattern 0.54 nanometer. Now, in helical pattern, the first amino acid always linked or bonded with fourth amino acid. मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो एक ऐसे टर्न गोल करके घूम रहा है, इसमें 1, 2, 3 और 4 एमाइनो एसिड रहते। ठीक है। और एक कंप्लीट टर्न में 3.6 एमाइनो एसिड रहते। ठीक है। अब एक एमाइनो एसिड से दूसरे एमाइनो एसिड का जो डिस्टेंस है वो होता है आपका 1.5 नैनोमीटर की दूरी में रहते हैं। और एक कॉइल से दूसरे कॉइल, इसके दोनों के बीच में जो दूरी है वो होता है आपका 0.54 नैनोमीटर। समझ में आया? इन अल्फा हेलिक्स मोस्टली वी फाइंड हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस, वैन डर वाल्स फोर्स, देन आयनिक बॉन्ड्स. All those bonds present inside of this helix, not outside. That's why we call those intra-chain linkage. It means all the amino acids in this coil bonds with upper one and lower one inside this coil. Okay, inside the helical pattern, not outside. Okay, मतलब ये जो coil है, जितने सारे एमाइनो एसिड एक एक कॉइल में है, वो सब का जो बंधन एक दूसरे के साथ बन रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड या फिर जो भी नॉन पेप्टाइड टाइप का बॉन्ड है, वो सब एक कॉइल के अंदर होता है, बाहर में कुछ जाता नहीं। ठीक है। ऑल टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स प्रेजेंट्स इनसाइड दिस हेलिकल पैटर्न वी कॉल इट इंट्रा चेन लिंकेज। इंट्रा मीन्स इनसाइड। नाउ मोस्ट अल्फा हेलिक्स हैज मिथ्योनिन, देन एलानिन, फिनाइलएलानिन एंड ल्यूसिन। मतलब जितने सारे अल्फा हेलिक्स का स्ट्रक्चर बनते हैं, इनमें से ज़्यादातर आपका मिथ्योनिन से बनता है, फिर आपका एलानिन, फिनाइलएलानिन और ल्यूसिन देखने को मिलता है। नाउ दिस स्ट्रक्चर कैन बी ब्रेक डाउन बाई प्रोलीन, ग्लाइसिन, अर्जिनिन, ग्लूटामिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड, लाइसिन एंड हिस्टिडीन। मतलब ये जो अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर है, इसको तोड़ने के लिए आपको प्रोलीन, ग्लाइसिन, अर्जिनिन, ग्लूटामिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड, लाइसिन या फिर हिस्टिडीन, इन सब में कोई भी एक आपका
ये पूरा स्ट्रक्चर को खत्म कर सकता है। नाउ दिस स्ट्रक्चर प्रेजेंट्स इन आवर नेल हेयर्स एज केराटिन, also presents in hemoglobin, myoglobin, and sometimes you can find any type of lipoprotein in plasma along with some hormones। मतलब ये जो अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर है ये हमारे नाखून में, बालों में होता है जैसे केराटिन के रूप में, फिर हमारे खून में हेमोग्लोबिन, फिर मांसपेशियों में मायोग्लोबिन, और थोड़ा थोड़ा हमारा जो लाइपोप्रोटीन है, प्लाज्मा में जो लाइपोप्रोटीन होता है यहाँ पे देखने को मिलता है, और कुछ कुछ हार्मोन में देखने को मिलता है। ठीक है, बात करेंगे हम सब कुछ डिटेल्स में, थोड़ा सब्र रखिए। Next is beta pleated sheet. Beta pleated sheet means two single polypeptide chain perpendicular to each other. मतलब as you can see, one polypeptide chain, another polypeptide chain, they are perpendicular to each other. Okay, as you can see the N terminal and C terminal. All you can say these are parallel structure. Now the pattern of this beta sheet may be flat or zigzag or curvy like river. मतलब बीटा प्लेटेड शीट क्या होता है, कागज की तरह फ्लैट होता है। ठीक है, इनमें दो पॉलीपेप्टाइड चेन आते हैं। अल्फा हेलिक्स में हम देखा था एक पॉलीपेप्टाइड चेन, और बाकी जितने स्ट्रक्चर है बीटा प्लेटेड शीट यहाँ पर आपको दो दिखने को मिलेगा। ठीक है, ये स्ट्रक्चर या तो एकदम कागज की तरह फ्लैट होगा, या फिर तेरा मेरा होगा, या फिर इसमें कर्व होगा। ठीक है, नदी जैसा। In this beta pleated sheet, mostly we see hydrogen bond between two polypeptide chain known as interchain linkage. ये जो दो चेन है दोनों के बीच में हमको नॉन पेप्टाइड बॉन्ड्स देखने को मिलते हैं। नॉन पेप्टाइड में हमारा ज्यादातर हाइड्रोजन बॉन्ड रहता है। अब जब ये नॉन पेप्टाइड बॉन्ड्स दो अलग अलग पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर बन रहा है, इसको हम कहते हैं इंटर चेन लिंकेज। इंटर मतलब दो चेन के बीच में। ठीक है, अब यहाँ पर दो चीज, अगर दोनों का एन टर्मिनल एक ही दिशा में है तो हम कहेंगे पैरेलल, अगर दोनों का एक दूसरे के उल्टी दिशा में है तो हम कहते हैं एंटी पैरेलल। व्हाट आई मीन इज इफ बोथ एन टर्मिनल प्रेजेंट्स इन सेम साइड वी कॉल पैरेलल, इफ बोथ एन टर्मिनल प्रेजेंट्स ऑपोजिट टू ईच अदर वी कॉल एंटी पैरेलल। नाउ एग्जांपल, दिस स्ट्रक्चर प्रेजेंट्स इन आवर एंजाइम्स and some neurotransmitter. Okay, next is beta bands. See, two polypeptide chain gets connected by a short chain amino acid known as beta bands. The number of amino acids in this short chain should be 10 or less than 10. मतलब अगर दो अलग अलग polypeptide chain एक छोटे से amino acid के chain के जरिए जुड़ जाता है तो इसको हम कहते हैं beta bands. बैंड में हमेशा amino acid का संख्या 10 या फिर 10 से कम होगा। Example, major histocompatibility markers, MHC markers, then carrier proteins, receptors, etc. Then we can find beta turns. If two polypeptide chain got connected by one short chain amino acid which has 10 to 20 amino acids known as beta turns. मतलब ये जो दो अलग अलग polypeptide chain है, इनको अगर हम एक छोटे से amino acid के chain के जरिए जुड़ते हैं जिस chain में amino acid का संख्या 10 से 20 होता है, ना कम ना ज़्यादा। ठीक है, इसको हम कहते हैं बीटा टर्न्स, जैसे फॉर एग्जांपल इम्यूनोग्लोबिन्स। ओके, नेक्स्ट वी कैन फाइंड बीटा लूप्स, सेम कॉन्सेप्ट, व्हेन टू polypeptide chain got connected by long chain of amino acid ranges from 20 to 50 amino acids। मतलब दो अलग अलग polypeptide chain अगर एक लंबा सा amino acid के चेन के जरिए जुड़ रहा है, लंबा amino acid मतलब इसमें कम से कम 20 से लेके 50 तक, 20 से लेके 50 तक अमाइनो एसिड तो होगा ही। दो अलग अलग पॉलीपेप्टाइड चेन को जुड़ते हैं, इसको हम कहते हैं बीटा लूप्स। फॉर एग्जांपल, कॉम्प्लेक्स प्रोटीन स्ट्रक्चर लाइक राइबोसोम, हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन, हॉर्मोन्स एटसेट्रा। सुपर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर मीन्स इट हैज कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल अल्फा हेलिक्स एंड मल्टीपल एनी अदर बीटा टाइप्स लाइक बीटा अल्फा बीटा बीटा, देन अल्फा बीटा अल्फा and beta meanders etc etc. These are highly unstable and seen in enzymes, antigens, antibodies etc. मतलब ये जो आखिरी सुपर सेकेंडरी स्ट्रक्चर है इसमें क्या होता है, बहुत सारे अल्फा हेलिक्स और उसके साथ कोई भी बीटा टाइप, जैसे आपका बीटा लूप हो सकता है, बीटा टर्न हो सकता है, या फिर बीटा बैंड हो सकता है, या फिर तीनों ही एक साथ हो सकते हैं। बहुत सारे बीटा स्ट्रक्चर होते हैं जैसे आपका बीटा अल्फा बीटा, या फिर अल्फा बीटा बीटा, या फिर अल्फा बीटा अल्फा और बीटा मिएंडर्स वगैरह वगैरह। और ये सब स्ट्रक्चर ज़्यादा टाइम रुकता नहीं है, बिखर जाते हैं, जैसे हमारे एंजाइम्स में दिखते हैं, एंटीजन में दिखते हैं, एंटीबॉडीज में दिखते हैं। अब ये सब क्या चीज़ है वो हम बाद में बात करेंगे। ठीक है, सो दैट्स ऑल अबाउट सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स। आई होप यू विल अंडरस्टैंड अबाउट दिस एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। देन बाय।